इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में इंतखाब कराए जाएंगे। आसाम में असेंबली इंतखाबात 3 मराहिल में होंगे, जबकि तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में एक ही मरहले में असेंबली इंतखाबात होंगे। केरल में भी एक ही मरहले में इंतखाबात कराए जाएंगे। इन तीनों मकामात पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2 मई को नताइज जाएंगे। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करते हुए इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा कि इंतखाबात के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। I'll start with Assam General Assembly Elections 2021. Elections shall be held in 3 phases. First phase, date of poll 27th March. Date of counting 2nd May. I shall not read 2nd May again and again because that is the date of counting is same for all the elections. Assam second phase, 39 constituencies. Date of poll 1st April. Assam third phase, final phase, 40 assembly constituencies. Date of poll 6th April. Now I go to Kerala. All elections in 14 districts consisting of 140 assembly constituencies to be held in a single phase as follows. Date of poll 6th April. General election to Assembly of Tamil Nadu 2021. All elections to 38 districts consisting of 234 assembly constituencies shall be held in a single phase as follows. Date of poll 6th April. Puducherry 2 districts, 30 assembly constituencies to be conducted in a single phase as follows. In Tamil Nadu being a far bigger state, this was the only major demand of the political parties in Puducherry. Anyway, I'll read it now. Issue of notification 12th March. Date of poll 6th April. West Bengal 8 phases. West Bengal first phase, issue of notification 2nd March. Date of poll 7th March. Second phase again 30 assembly constituencies. Date of poll 1st April. Third phase 31 assembly constituencies. Date of poll 6th April. Phase 4. Date of poll 10th April. Fifth phase 45 assembly constituencies. Date of poll 17th April. Phase 6 43 constituencies. Date of poll 22nd April. Seventh phase 36 assembly constituencies. Date of poll 26th April. If you have gone through it, can we move to the last phase? Date of poll 29th April. वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में और रियासत के कुछ इलाकों में 2-3 मरहलों में इंतखाबात कराए जाने पर नाराजगी का इजहार किया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अवाम को हिंदू मुस्लिम में तकसीम करने का भी इल्जाम लगाया है। दीदी ने मजीद कहा कि वो ये जंग लड़ें और जीत कर दिखाएंगी। তাকে আবার পার্ট 1 পার্ট 2 করছে। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে, মানে একটা জেলা 3 বারে। বুঝুন অবস্থা। ফিফথ মার্চ যে ইলেকশন হচ্ছে, নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল, বাঁকুড়া পার্ট 2, পশ্চিম মেদিনীপুর পার্ট 2, পূর্ব মেদিনীপুর পার্ট 2, সাউথ 24 পরগনা পার্ট 1। এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে? আসামের ইলেকশনটা একবারে করে নিয়ে 27 মার্চের মধ্যে, এপ্রিলে 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালার ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন। আমাদের যে আসে না
এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। আপনি জেলাকে ভাঙছেন, বিজেপি আপনারা জেলাকে ভাঙছেন, আপনারা মা বোনদের ভাঙছেন, অসম্মান করছেন, আপনারা ভাই বোনদের ভাঙছেন, আপনারা হিন্দু মুসলিম ভাঙছেন, আপনারা বাঙালি বাঙালি ভাবছেন, আপনারা বাঙালি রাজবংশ ভাবছেন, আপনারা বাঙালি মুসলিম উর্দু মুসলিম ভাবছেন, আপনারা টোটাল দেশটাকে ভাঙছেন। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के ऐलान का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पैन बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। और मैं चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूँ कि कांग्रेस लीडर प्रदीप भट्टाचार्य ने इंतखाबात की तारीखों के ऐलान का खैर मकदम किया है, लेकिन उन्होंने शक जाहिर किया है कि इलेक्शन कमीशन अपने वादे को पूरा नहीं करेगा। समझता है जो हुआ तो ठीक ही हुआ। 8 दफे हमारा स्टेट में इलेक्शन होगा। हम लोग ने तो ये रिपोर्ट किया इलेक्शन कमीशन को, जे जितना दफा आपको जरूरत है आप करिए, लेकिन आम आदमी जैसा तरीका से हो, पोलिंग स्टेशन में आ जाए और अपना वोट अपना तरफ से डालने के लिए कोशिश करे। वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मुझे ये दिखता है इलेक्शन कमीशन कभी कभी आश्वासन देता है, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं। इसी दफे में जो होता है, 8 दफा में जो इलेक्शन होते रहे, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो ने वादा किया उसको पूरा रक्षा करेंगे। मगरबी बंगाल के गैर इमदाद याफ्ता सरकारी मदारिस के असातिज़ा और दीगर स्टाफ के लिए हुकूमत ने 44 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर क़यासुद्दीन मुल्ला ने आज इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 135 मदारिस के असातिज़ा और दीगर स्टाफ को फिलहाल तनख्वाह दी जाएगी, जबकि दीगर मदारिस को जीत के बाद सहूलियात दी जाएंगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों मदारिस के असातिज़ा ने वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी के घर के सामने नाले में कूद कर एहतजाज किया था। हुकूमत ने 235 मदारिस को बगैर किसी सरकारी इमदाद के मंजूरी दी है। एक साल बाद भी दहली फसाद मुतासरीन के जख्म नहीं भर पाए हैं। दहली फसादात की आड़ में NRC और CAA की मुखालफत करने वालों को पुलिस की जानिब से निशाना बनाए जाने की भी सुर्खियां बनती रही हैं। नरगिस का भी कुछ ऐसा ही दर्द है। नरगिस के मुताबिक उनके शौहर खालिद सैफी को CAA NRC के मुखालफत में खुरेजी इलाके में एहतजाज में शिरकत को लेकर एजेंसियों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। नरगिस के मुताबिक पहले खालिद को गिरफ्तार किया गया, फिर उन पर UAPA समेत 3 केस लगा दिए गए। कुछ ऐसा ही दर्द अतर खान की वालिदा का भी है। उनके मुताबिक अतर खान बिना किसी कसूर के 8 महीनों से जेल में कैद है। मारूफ वकील प्रशांत भूषण की सरबराही में इन मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर प्रशांत भूषण ने मरकजी हुकूमत, दहली पुलिस और जांच एजेंसियों को आड़े हाथों लिया। देखिए, जिस टाइम उनको अरेस्ट करा था ना, तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना वक्त लगेगा, या भी हमें ये भी पता नहीं है कि और कितना वक्त लगेगा। तो इन सब चीज़ों में हम उनको अरेस्टिंग के बाद से हमारे दिल में खौफ सा रहता है एकदम। जगतपुरी थाना बिल्कुल हमारे घर के करीब है, तो हमें इस बात का डर रहता था कि जब कोई पुलिस की गाड़ी रोड पे से जाती थी ना, तो हमें ये डर लगता था कि वो हमारे लिए तो नहीं आ रही। तो जब वो सामने खड़े होते थे आगे किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे रोड पे बेकरीज वगैरह बहुत हैं, तो जब हमारे घर के सामने कोई भी किसी भी तक पुलिस वाला कोई भी हो, तो वो आगे खड़ा होता था ना, तो हमें लगता था कहीं वो हमें तो नहीं देख रहे, हमें तो लेने नहीं आए, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। ऊपर से फिर
उनको जब क्राइम ब्रांच लेके गए, फिर स्पेशल सेल लेके गए, तो बहुत से सबने कहा कि आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, आपके साथ ये है। तो उनका अगर वो नज़र भी रखी जा रही तो उनका हमें ये डर रहता था कि वो क्या देखना क्या चाह रहे हैं। अब जो यहाँ आप आई हैं, एक साल हो गया, खालिद है भी अंदर नहीं है, तो क्या कहना चाहती है इस मुल्क से, अदलिया से या फिर सरकार से? मैं आप सभी से एक इतनी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि जितने भी बेगुनाह लोग अंदर जेलों में कैद हैं पिछले 1 साल से, और ख़ास तौर से इशरत जहाँ बाजी और मेरे हस्बैंड, उनको पूरा 1 साल हो गया है और उसके बाद तक लगातार गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उन सब की रिहाई चाहते हैं हम लोग। मेरे बेटे का नाम अतहर ख़ान है। पिछले 8 महीने से वो जेल में है। ये पिछले 8 महीने बस एक ही उम्मीद पर ज़िंदा हैं हम लोग कि आने वाला कल हमारे लिए उसकी रिहाई की खबर लाएगा, पर ऐसा अभी तक कुछ पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं देता। बस यही उम्मीद है कि उसके साथियों के लिए और उसके लिए कि वो जल्द अज जल्द बाइज़्ज़त बरी होकर आए। वही सब कुछ सुनने में आता है कि तुम्हारे घर पर नज़र रखी जा रही है, तो मतलब एक डर का माहौल बना रहता है हर वक्त कि कहीं जाएं या ना जाएं, कहीं हमारे पीछे हमारे रिश्तेदारों तक या कहीं और ना पहुंच जाएं ये लोग। तो इस बस एक तरह से हम कैद होकर रह गए हैं घर में अपने। देखिए, जो आज इस देश में चल रहा है वो कानून का राज तो कहा नहीं जा सकता। आज तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जो दंगई हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हिंसा करते हैं, जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं, उनको खुली छूट दी गई है। और जो लोग न्याय के लिए, दूसरों के हक के लिए, अपने हक के लिए, दूसरों के हक के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनको झूठे केस में फंसाकर, अरेस्ट करके, टॉर्चर करके हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो पुलिस एजेंसीज हैं, चाहे ये दिल्ली पुलिस हो, चाहे ये NIA हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये सरकार के हाथ में बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सफर हज पर रवाना होने वाले आज़मीन हज को रवाना होने से कबल कोरोना वैक्सीन लगाना लाजमी होगा। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर, मरकजी वजारत सेहत के ताउन से आज़मीन हज को वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। वैक्सीनेशन की तैयारी हो चुकी है और हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसमें इसकी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने उनसे बात भी की है और एक सिलसिले में एक मीटिंग हुई है। हमको सिर्फ इंतजार है कि सऊदी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल का, उनका जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल रहेगा, जिस तरीके से सऊदी मिनिस्टर ने उनकी मीटिंग, एम्बेसडर साहब की मीटिंग में बताया कि हमको वो वैक्सीनेशन शायद करना पड़ेगा, वो अगर कानून बनता है, तो अगर वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बनता है, तो इंडियन गवर्नमेंट हर एज के हाजी को वैक्सीनेशन देने के लिए तैयार है। कल आलमी यौम मराठी है। इस एतबार से मुंबई में उर्दू और मराठी ज़बान के तहजीबी ताल्लुकात और रिवायात पर रोशनी डालने के लिए मुंबई के प्रेस क्लब में यौम मराठी के हवाले से उर्दू कारवां तंजीम ने तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर हाज़रीन ने रियासत महाराष्ट्र में उर्दू को उसका जायज़ हक फराहम करने का भी मुतालबा किया। 4 साल हुआ उर्दू कामों को बनकर और जब से लेकर अब तक जो है मुसलसल आज हमारा ये चौथा प्रोग्राम है कि हम लोग साल में एक मरतबा कम अज़ कम जो है अलामती तौर पर जब कुसुम अग्रज जी जो मराठी के बड़े शायर हैं और राइटर हैं, उनकी सालगिरह जो है वो पूरी दुनिया में मराठी भाषा दिवस के तौर पर मनाई जाती है, तो उर्दू कारवां भी यौम मराठी मनाता है। और अगरचे उनकी सालगिरह कल है 27 फरवरी को, लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते थे उर्दू वालों की तरफ से कि उर्दू कारवां जो है वो एक उर्दू तंजीम में जो है सबसे पहले मराठी दिवस का प्रोग्राम जो है उसको आज मनाया है। और महाराष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, तो सदियों पुरानी महाराष्ट्र और उर्दू की जो है तहजीबी और सकाफती और लिसानी रिवायतें हैं कि दोनों ज़ुबानें किस तरह से एक दूसरे के जो है मुसलसल करीब हैं और दोनों ज़ुबानों का मुसलसल साथ रहा है। इस तरह के प्रोग्राम से लोगों से मिलना, गैर लोगों से मिलना, जो गैर उर्दूदां है उनको भी अपने
इसमें ले आना चाहिए इस तरह के फंक्शंस करके। और आज का फंक्शन देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं अंजुमन ने भी बड़ी कोशिश करनी चाहिए कि अंजुमन का भी अखलाकी फ़र्ज बनता है उर्दू के फ़रोग़ के लिए, तो उर्दू और मराठी को साथ में जोड़ना चाहिए। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, मराठी की जानकारी होना भी ज़रूरी है, जो बड़े स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन अच्छी मराठी बोलने के मराठी, लिखने के मराठी भी हमारे बच्चों को आनी चाहिए। रियासत भोपाल की कदीम रिवायत को कायम करने के लिए भोपाल में सहरोज़ा परी बाज़ार का इफ्तिताह किया गया। परी बाज़ार में ख़वातीन ने अपने स्टॉल लगाए और बेगम्स ऑफ भोपाल ग्रुप की रिवायत को जिंदा करने की पहल को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। बेगमात भोपाल के जरिए 150 साल कबल परी बाज़ार शुरू किया गया था, जिसमें ख़वातीन ही दुकानदार और ख़वातीन ही खरीदार हुआ करती थी। भोपाल रानी कमलापति बाग में लगाए गए सहरोज़ा परी बाज़ार के पहले दिन हालांकि कम ही स्टॉल लगाए जा सके, मगर उसमें भी ख़वातीन ने भोपाल की ख़ास पहचान जरी, जरदोज़ी, बटवे की स्टॉल लगाकर कदीम रिवायत को जिंदा किया। ख़वातीन बेगम्स ऑफ भोपाल की तहरीक से काफ़ी खुश है। उद्देश्य यही है, आपने देखा कि सारे हमने स्टॉल्स यहाँ पे जो लगाए हुए हैं, तो अपने जो हमारे यहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं, जो हमारा आर्ट है, भोपाल की जो खासियत है, जरी, जरदोज़ी, बटुए, बादला, चुनाई, इतर, आपने देखा है सब दुकानें यहाँ पे वो हमने लगाने की कोशिश की हैं जो 150 साल पहले परी बाज़ार में लगा करती थी। हमने बहुत खुशी की बात है, और अभी हमारा इनाग्रेशन भी भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी ने करा, उन्होंने भी बहुत खुशी जाहिर करी कि आपने इतनी 150 साल पुरानी रिवायत को दोबारा चालू किया है। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास है आज परी बाज़ार के अंदर। बहुत अच्छा लगा सर। और हम लोगों ने यहाँ भोपाली बटवे तैयार किए हैं जो बेगमें रखती थी पुराने ज़माने में, और यही चीज़ हमने तैयार भी की जरी जरदोज़ी के काम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हमें लग रहा है कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगा ये, क्योंकि भोपाल की स्पेशल चीज़ हमने भोपाली बटवे तैयार किए हैं जरी जरदोज़ी के काम के। ये जो परी बाज़ार है, एक ज़माना था जब औरतों के लिए एक पूरी आज़ादी के साथ एक बाज़ार लगता था जो कि परी बाज़ार कहलाता था। वहाँ पर औरतें बिल्कुल सेफ्टी के साथ अपनी बहुत ही खुशनुमा माहौल से शॉपिंग करती थी, जो कि ख़त्म हो गया है। अब जो ये बाज़ार चालू किया है वुमेंस ने, तो उसमें वुमेंस में पावर दिख रहा है कि वो मतलब आगे अपने बिल्कुल सेफ्टी और सुकून के साथ खुशनुमा माहौल, मतलब ये एक एकता दिख रही है हम लोगों में कि हम लोग सब मिक्स होकर इस बाज़ार में आराम से शॉपिंग कर रहे हैं। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली की यौम विलादत पर हर साल की तरह इमसाल भी नुमाइश का इनकाद किया गया, जिसमें हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरानी नुस्खा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। वहीं लाइब्रेरी इंतज़ामिया ने हज़रत अली पर मौजूद 200 से ज़ायद किताबों की नुमाइश भी की। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि हम हर साल हज़रत अली के पैगाम को आम करने के लिए ये नुमाइश लगाएं ताकि लोग ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सीख सकें। आज जो नुमाइश लगाई गई वो हज़रत अली की यौम विलादत के मौके पर लगाई गई, और जो हमारे 4th खलीफा हैं इस्लाम के, उस सिलसिले में हमारे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में तकरीबन 200 किताबें मुख्तलिफ़ ज़बानों में हैं, अरबी, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश वगैरह में। उन किताबों की नुमाइश लगाई गई। हज़रत अली की लिखी हुई उर्दू में वही बुक देखी थी, और टाइम थोड़ा कम था तो ज़्यादा तो नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट्स हैं, लेकिन जो भी था सब बहुत यूनिक था, हिस्टोरिकल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु में नौरंग कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों ने यह बात कही। नौरंग कांग्रेस ने कहा कि हुकूमतें उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं। पार्टी के नुमाइंदे अब्दुल करीम देसाई ने कहा कि कर्नाटक में 1000 उर्दू और कन्नड़ स्कूलों अंग्रेजी मीडियम में तब्दील किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल है, सब मिलके इस देश को हिंदू देश बनाने के लिए ये पूरा मुसलमानों के ऊपर, दलितों लोगों के ऊपर दबाव चल रहा है। इसीलिए हम नवरंग कांग्रेस पार्टी शुरू कर रहे हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट 1000 कन्नड़ा और उर्दू मीडियम के स्कूल अंग्रेजी मीडियम को ट्रांसफर कर दिए, जहां पर उर्दू और कन्नड़ा वाले करोड़ों की जमीन, करोड़ों की जायदाद
उर्दू और कन्नड़ा के लिए वक्फ करे, वो वक्फ करे तो स्कूलों को सीधे सीधे इंग्लिश मीडियम में करके आप क्या हासिल कर रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि जो है गवर्नमेंट जो है उर्दू को प्रमोट करने के लिए सारे स्कूल जो बंद हो गए वो स्कूल्स को फिर से रीओपन करे और गवर्नमेंट को जितने मुस्लिम से खासकर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए, उनको प्रेशर बिल्टअप करे ताकि गवर्नमेंट खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ने की हिंदुस्तानियों में एक कुदरती सलाहियत होती है। इसका सीधा रिश्ता खुददारी और खुदमुख्तारी से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC ने मुल्क भर से ऐसी कहानियां चुनी है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी परेशानियों को लोगों ने खुद हल किया है। ये कहानियां हैं नए नए तजुर्बों और खुद पर इन्हिसार की, जो हमें एक मुल्क के तौर पर जाहिर करती है। उनमें से एक कहानी IIT ग्रेड की, जिसने फजाई आलूदगी से निपटने के लिए एक डिवाइस बनाया है जो इनोवेटिव और कम खर्च से बना हुआ है। जब वो IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, प्रतीक ने अपनी माँ की बीमारी का सलूशन खोजने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की मांग की जो न केवल प्रदूषकों से लड़ने में कारगर हो बल्कि सस्ती भी हो। मैं रहने वाला बीकानेर राजस्थान का हूँ, जहाँ पे धूल भरी आंधी जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहा है। एंड चूंकि मेरी मदर खुद एक सीवियर एस्थमेटिक थी, उन्हें अस्थमा की दिक्कत रहती है, उसी से कुछ आइडियाज़ आए क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जा सके जो आपके नाक पे ही लग जाए, जो आपके नाक के अंदर भी ना जाए और जो आपके फेस को भी ना ढके। उसी से नेजो फिल्टर्स का आइडिया डेवलप हुआ। नेजल फिल्टर का एक पीस सिर्फ 10 रुपए का है और ये विशिष्ट नहीं है। बाजार में आमतौर पर पाए जाने वाले बड़े पारंपरिक फेस मास्क के विपरीत है। यूजर्स को बस अपने नथुने नॉस्ट्रल्स को लगभग ट्रांसपेरेंट फिल्टर के साथ कवर करना होगा और इसे 8 घंटे तक पहनना होगा। 10 लाख नेजो मास्क हम लोग आज इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट को सप्लाई कर चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चाइना, कंट्रीज लाइक वियतनाम, UAE, इन सारी कंट्रीज के अंदर हमने एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नेजो मास्क को सप्लाई किया। एक स्वाभिमान रास्ते पर चलकर नेजो फिल्टर भारतीयों को प्रदूषण से बचाने और सांस लेने में मदद कर रहे हैं।